Hey all you awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I will be sharing a story from my flying days. And the idea credit goes to the sweet girl, Ayushi Lamba. She follows me on Instagram. If you guys are not following me there, please follow me. It's Nirupama2Kukreti. I upload content on a daily basis there, so make sure you check it out. And if you like my profile, please follow me there and make me happy. So she messaged me on Instagram asking me to share any incident where I have experienced turbulence, especially during the rainy season. And जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, instantly मेरे दिमाग में ये स्टोरी पॉप अप हुआ कि अरे, see, I am shit scared of turbulence. I hate turbulence. Like, this is one of the reasons you can say why I don't want to fly again. This is one of the major reasons. I know a lot of people will find it stupid, but honestly telling you, I'm shit scared of turbulence. So जब उसने मुझसे ये पूछा तो बहुत सारी कहानियां हैं इससे रिलेटेड, बट ये एक जो स्पेशली ये जो स्टोरी थी मेरे दिमाग में एकदम से आई एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल. एंड बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द स्टोरी, आई वुड लाइक टू पुट इट आउट देयर that you don't have to be scared of turbulence. I mean, it is scary and you can get injured, like severe injuries can happen. But if you are seated, if you are wearing your seat belt, or if you're taking precautions, like whenever you experience turbulence, the first thing which is taught to us, and that is the thing which we tell to the passengers, which they choose not to listen, is to sit on their seat and wear their seat belt. Even we do that. As a crew, we can differentiate between, like, you know, this is mild turbulence, this is moderate, this is severe, this is extreme. We can differentiate, right? And accordingly we can take actions. Like this is what is taught to us in the training, so we know how to handle it. But for the passengers, they don't know, so that is the reason why the crew keeps on telling them, sit down, wear a seatbelt, sit down, wear a seatbelt, don't move, don't use a washroom and all of that. If you follow all these things, you don't have to be scared. But the feeling, you know, the feeling when you are in the aircraft and the aircraft is moving like this or like this, it is so scary. A lot of people, you know, compare it with roller coaster rides. Good for them. I have never tried it. I don't want to try it. I hate slides. I just hate everything. I think if I go to Disneyland, I will just go and click pictures with the characters over there. उसके अलावा मैं कोई भी राइड ट्राई नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत है ही नहीं. So that is about that. So yeah, let me just start telling you this story now. So I cannot tell you the day, the date or the year, but I can tell you that it was an international flight. We were operating from Amsterdam to Toronto, and the aircraft what we were using was Boeing 777. So we were flying on Boeing 777. And I was working in economy, and I used to hate working in economy. Reason being, कभी कुछ turbulence हो जाए तो you know, ये fact है. मतलब ऐसा नहीं कि मेरी मनगढ़ंत कहानियां मैं बना रही हूँ. It is a fact कि whenever you are flying, if you sit, अगर आप आगे बैठोगे एयरक्राफ्ट के तो आपको turbulence कम महसूस होगा, पीछे बैठोगे तो ज्यादा महसूस होगा. मतलब आगे pilots at times they ask us, you know, जो पीछे का crew होता है उसको पूछते हैं कि how is the situation behind, क्योंकि आगे इतना होता है, मतलब होता है, बट इतना इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू व्हाट यू फील इन इकोनॉमी उससे तो कम ही होता है. यू नो, लाइक अगर आगे एयरक्राफ्ट ऐसे हिल रहा होगा तो पीछे ऐसे हिल रहा होगा. यू नो, इतना डिफरेंस होता है. सो आई यूज्ड टू हेट वर्किंग इन इकोनॉमी. मैं बोलती थी कि मैं पीछे जाके हेल्प कर दूंगी, क्रू की सब काम कर दूंगी, बट मुझे टेक ऑफ लैंडिंग के लिए या बैठने के लिए या रेस्ट करने के लिए मुझे प्लीज आगे बैठाओ, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली दैट डे आई वॉज वर्किंग इन इकोनॉमी. सो या, सो क्या हुआ कि अभी हमारी सर्विसेज वगैरह सब हो चुकी थी एंड इट वॉज अ लल पीरियड. तो लल पीरियड इज बेसिकली जबकि सब चिल कर रहे हैं. चिल तो करते नहीं पैसेंजर्स, खैर, बट यू नो they were like sitting, some of them were sleeping, we were also sitting, we were chatting, having our food, and basically जब आपकी कोई सर्विस नहीं होती है तो that's a lull period. Okay, so we were just sitting and suddenly the turbulence started and it was so bad, I can't tell you. It was so scary. मैं बता नहीं सकती. एयरक्राफ्ट ऐसे हिल रहा था, literally it was moving like this. Oh my goodness, I was so scared. And you know, it is not like I told you, मुझे पता है कि I'm not gonna die, but मुझे ऐसा लगता था कि मैं हार्ट अटैक से जरूर जाऊंगी. You know, जो ये इतना मेरे को डर, मेरे जो पल्स रेट, ये बीपी शिपी सब जो इतना हाई लो होता रहता था बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंस, तो मुझे लगता था कि मैं तो जाऊंगी भी. एंड
मतलब इट वॉज, आई कांट टेल यू कि मुझे कितना 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 डर लगता है टर्बुलेंस. सो जनरली व्हाट आई डू कि जब भी टर्बुलेंस होता है तो आई स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू नो, कि अगर जैसे थोड़ा सा अगर टर्बुलेंस हो तब भी मुझे डर लगता है, तो आई स्टार्ट डूइंग समथिंग टू, यू नो, डाइवर्ट माई माइंड. बट अगर सिवियर टर्बुलेंस है तो उसमें तो तुम एयरक्राफ्ट ऐसे हिल रहा है, तुम कैसे इसमें जाके काम करोगे, नहीं कर सकते ना. तो यू हैव टू सिट, यू हैव टू बी सीटेड एंड यू हैव टू बी स्ट्रैप्ड. एंड जब टर्बुलेंस शुरू हो जाता है मेरा हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो जाता है. I remember the other crew used to be like, you know, Nirupama, don't worry, कोई बात नहीं, it's okay. I used to be like, you know, give me your hand, give me your hand. लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना हाथ दो मुझे. Because you know, जब आप किसी को एक होता है ना सहानुभूति आपको मिलती है कि अच्छा ठीक है, I'm there. You know, it just, I don't know, you know, you feel little better. I won't say कि वो डर एकदम से चला जाता है, but you feel little better, okay? So अभी इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस हो रहा था. तो एयरक्राफ्ट, if you have seen 777, it's huge. Now I can't tell you the distance, but it is huge. मतलब बहुत ही लंबा होता है एयरक्राफ्ट. कितना बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, लेंथ तो मुझे नहीं पता, पर बहुत लंबा एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है. और मैं एकदम, आई वॉज राइट एट द एंड, ठीक है. और मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा मैं तो नहीं बैठ सकती भाई यहाँ पे, मुझे हार्ट अटैक क्या आ जाएगा सच में. तो मैं उठी और मैं चलने लगी, ठीक है, टर्बुलेंस में, कि मैं आगे चली जाऊंगी, सबसे आगे ना, मतलब बिजनेस में चली जाऊंगी या फर्स्ट क्लास में जाके वहां बैठ जाऊंगी, क्योंकि वहां पे मुझे पता है टर्बुलेंस कम फील होगा. यहाँ पे तो मेरी जान निकल जाएगी इससे, और पता नहीं कब. और उस सेक्टर में स्पेशली बहुत टर्बुलेंस होता था. लाइक अगर मैं एम्स्टर्डम टोरंटो की बात करूँ, टोरंटो में मतलब जाते थे तो बहुत टर्बुलेंस होता था, बैंगलोर में बहुत होता था, बॉम्बे में बहुत होता था, रायपुर में भी कभी कभार बहुत हो जाता था, हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक. ओ गॉड, मतलब इंसान खुशी कैसे मनाए कहीं जाने की जब उसे पता है कि रास्ते में उसको इतना डर लगने वाला है, उसकी इतनी हालत खराब होने वाली है. तो मैं जाने लगी, ठीक है, आगे जाने लगी. अब जब थोड़ा और बढ़ गया तो मैं ना मिड कैबिन में जाके बैठ गई, कि जहाँ पे मेरी जंप सीट थी. तो आई वॉज वर्किंग एज 3 आवर है, तो मैं वहां जाके बैठ गई, ठीक है, जंप सीट के ऊपर. एंड मैं अपनी सीट बेल्ट ऐसे एकदम बांध ली ऐसे करके ना बैठ, और मेरे बेस पोजिशन में मैं ऐसे बैठी. अब बेस पोजिशन क्या होता है, क्या यार, तुम लोग जब कैबिन क्रू बन जाओगे तभी तुम सीख लेना, सारी चीजें थोड़ा मैं सिखा दूंगी, है ना. तो हम मतलब बैठ गई इस तरीके से जैसे हमें बैठना होता है टेक ऑफ लैंडिंग के लिए. एंड आई वॉज लाइक, अब मुझे अपने चेहरे पे दिखाना नहीं पैसेंजर्स को, बिकॉज वो मिड कैबिन में है ना, तो देयर आर अदर पैसेंजर्स ऑल्सो सिटिंग. मतलब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने पैसेंजर्स बैठे 3, तो ऐसे करके पूरा कैबिन भरा हुआ है पैसेंजर्स से, और एयरक्राफ्ट ऐसे लड़, एंड द पैसेंजर्स आर सिटिंग लाइक दिस, दे डोंट वांट टू शो दैट दे आर स्कैर्ड, यू नो. बहुत लोगों का होता है कि मेरा जिगरा बहुत मजबूत है. सो या, तो मुझे भी वही दिखाना था ना लोगों को, बिकॉज आई एम अ कैबिन क्रू. अगर इफ आई गेट स्कैर्ड देन पीपल विल बी लाइक अरे यार, मतलब कि कुछ तो खतरनाक होने वाला है, जो कि कुछ नहीं होने वाला है, ये बस मेरे दिमाग का फितूर तो नहीं कहूंगी, बट हाँ डर है. सो मैं बैठी थी वहां पे ऐसे करके ना, एंड आई वाज लाइक अंदर में बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. मतलब मैं खत्म करो इसको भाई, कितनी देर तक चलेगा टर्बुलेंस. एंड देन देयर वाज दिस पैसेंजर, फिर हम गर्ल, ठीक है, शी वाज सिटिंग एकदम जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने बैठी थी. एंड शी इज लाइक ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. मैं कहा इसको ऑक्सीजन तो नहीं देना पड़ेगा मुझे, मतलब इसकी सांस तो इतनी मतलब जल्दी जल्दी शी वॉज ब्रीदिंग ना. सो आई शी लाइक एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, ओके. एंड मैंने कहा यार ये तो क्या हो गया. एंड पता नहीं क्या है, इट्स साइकोलॉजिकल, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट व्हेन यू सी द अदर पर्सन गेटिंग स्कैर्ड तो आपका डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. But that's what happened to me there, you know, because when I saw the other person getting scared, see, I तो can't show, तो ऐसा तो नहीं कोई मेरे को आके भाई बोलेगा कि कोई बात नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा. But this girl was sitting in front of me, and of course she doesn't have to hide her emotions, and she was very scared. She was like, oh my god, oh my god, oh my god, and I can totally understand. But then she started crying also. मैं भी रोना चाहती थी, but मैं उस position पे नहीं थी कि जहाँ पे मैं रो सकूँ. So this girl, she started crying, and I was like, you know what, give me your hand. तो मैंने अपनी जमसी बांध रखे, मैंने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई है, ठीक है, मैंने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई है, वो नहीं मैंने हटाई है. मैंने उसको कहा कि गिव मी योर हैंड. मैंने कहा गिव मी योर हैंड. सो उसने मुझे अपना हाथ दिया, मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, मैंने कहा डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके, ठीक है, इट्स जस्ट अ टर्बुलेंस, इट्स नॉर्मल, नथिंग इज गोना हैपन टू यू और एनीबडी, इट्स जस्ट अ रेगुलर टर्बुलेंस, ठीक है. अब मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ा, एक तो उसको सहानुभूति देने के लिए, दूसरा कि मेरी भी तो बैंड बजी हुई थी ना अंदर से, तो मुझे भी तो चाहिए था ना, मुझे भी तो चाहिए था कि कौन मुझे सहानुभूति दे. सो आई वाज लाइक यू नो ब्रीथ, यू नो, बिकॉज यू हैव टू ब्रीथ नाउ. तो अंदर का फर्स्ट एडर भी बाहर आ गया. सो आई वाज लाइक यू नो टेक डीप ब्रेथ्स, और उसके साथ साथ मैं भी ले रही हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी भी हालत खराब हो रखी है. सो यू नो बेचारा, शी स्टार्टेड ब्रीथिंग, आई आल्सो स्टार्टेड. And other passengers, they were looking at us, ki what are they doing? But then of course they thought, you know, I'm such a nice crew and I'm helping her, which I was doing. It was part of my intentions.
but also because I was also getting scared, so I wanted someone to, you know, be there. So बेचारा, and उसके वजह से like I'm holding her hand ना, there is this बेचारा ना, she's like oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. मैं देखो भाई, उसकी मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मैं, ठीक है, मैं भी ऐसे अंदर से, वो मेरी बस एक, आप ये कह लो कि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव थी वहां पे, ठीक है, जो मेरा डर था अंदर से, जो जैसा मैं करना चाहती थी, जो मैं दिखाना चाहती थी लोगों को, वो मेरी तरफ से शी वॉज डूइंग इट ऑन माई बिहाफ. सो यू कैन से दैट. सो या लकीली टर्बुलेंस आई वोंट से खत्म हो गया, बट बहुत कम हो गया, ठीक है. एंड शी वॉज लाइक, एंड देन मैं अपना हाथ वापस लिया, उसको बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, समझाया उसको थोड़ा अंग्रेजी में, हिंदी में तो उन्हें आती नहीं क्योंकि वो तो दूसरे देश से थे. सो देन मैं गैली में गई, मैं पानी लेके आई, मैंने उनको पानी दिया, मैंने कहा डोंट वरी, यू वांट एनीथिंग? नो, आई डोंट वांट एनीथिंग. बट बेचारा पुअर गर्ल यार, उसको बहुत डर लग रहा था यार, मतलब मुझे भी लग रहा था, पुअर मी ऑल्सो, बट यू नो आई वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हर. एंड अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, जैसा कि मुझे आयुषी ने पूछा था कि स्कैरी तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, वो नहीं होता. सी अगेन आई विल टेल यू कि ये सारी चीजें होती हैं, टर्बुलेंस होता है, मौसम खराब है, मतलब इट्स लाइक बादल, ऐसे समझ लो कि स्पीड ब्रेकर है, ज्यादा स्पीड ब्रेकर है तो ज्यादा झटका लगेगा, राइट. तो ये सब चीजें होंगी, बट इफ यू आर लाइक सिक्योर्ड, थोड़ा सा भी टर्बुलेंस है, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट डाउन, इट्स ओके. इफ यू रियली वांट टू गो एंड पी, यू कैन होल्ड इट, डोंट वरी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ब्लैडर में बहुत है अभी दम, ठीक है. सो प्लीज be seated and do not roam around, especially during turbulence. All right, so yeah, that was a small story, and I hope you guys like it. I hope you find it informative. Again, I want to tell you that I know it sounds scary, but don't worry, you don't have to worry. If I can fly for 6 years with this fear, so it's a cakewalk for you. All right, so don't worry about it. And yeah, if you like the video, make sure you like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. And if you like the video, okay, I've said it already. Also, comment in the comment section below if you have any experiences which you would like to share with us. I would love to read it. Any suggestions, please drop it down in the comment section below. And yeah, that's pretty much it for today's video. I shall see you in my next one. Take care.